Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. आज की क्लास में हमने जो हमारी एक्टिविटी गिवन है पेज नंबर 43 पे उसको फॉलो करना है और विजुअल स्टूडियो को हम इंस्टॉल भी करेंगे एंड वी विल सी के इसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड होता है और क्या क्या चीज़ें हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं इसके अंदर. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, the title would be VS Code install and use. VS Code installation is a bit simpler. We will simply go to Google and write Visual Studio Code. आपके पास जो first link आता है that is for Visual Studio Code. First top पे आपके पास button आ रहा है download for Windows and our setup has started. It should not be a larger file, so it just took a couple of seconds for me here. Once done, it will be opening, and there we go. We have the setup. Simply accept the terms. Next. We have installed nothing into this software right now. ये बिल्कुल bare bones सॉफ्टवेयर की फॉर्म में इंस्टॉल होगा. बिल्कुल बेसिक कोडिंग फंक्शनलिटीज के साथ, डिबगिंग की फंक्शनलिटीज के साथ हमारे पास एक इंस्टॉल बनेगी. Now this is the interface that you will be greeted with once you start your VS Code. For now we are not going into the setup part. We are concerned के हमारे पास इस सॉफ्टवेयर बना क्यों है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, all that. Okay, let's see. By following these detailed steps, you can create and run a simple Hello World project using HTML, CSS and JavaScript directly in Visual Studio Code using your default browser like Google Chrome. This setup allows you to see real-time updates as you make changes in your code. हमने इंस्टॉलेशन वाला पार्ट कर लिया. अब हम जाएंगे एक न्यू फाइल की तरफ. Create a new folder on your computer and name it Hello World Project. That's what we are going to do. In a separate folder, and we are going to create Hello World Project. अब इस फोल्डर को हमने ओपन करना है Visual Studio के अंदर. The instructions for it is open the project folder in the Visual Studio Code. In Visual Studio Code, click on File at the top. Then we go to Open Folder and navigate जहाँ पे आपने अपना folder बनाया है and select folder. Once it opens, this would be your interface because हम welcome page में हैं, nothing added yet, तो यहाँ पे कोई भी unique चीज़ फिलहाल add नहीं हुई भी. Okay. Create HTML, CSS and JavaScript files. In the Explorer pane, in the left side, अगर आपके पास इस फॉर्म में है, टॉप पे आपके पास एक फाइल वाला आइकन बना होगा, तो इसको आप क्लिक करेंगे. यहाँ पे आपके पास आपके फोल्डर का नाम आ रहा है, उसके साथ है न्यू फाइल. क्लिक ऑन न्यू फाइल एंड गिव इट द नेम index.html. आपने इसके साथ एक्सटेंशन लाजमी ऐड करनी है. Once you do that, आपके पास एक न्यू टैब ओपन होगा जिसका नाम है index.html. Let's write our code. भी यहाँ पे हमें select a language and all that हमें show हो रहा है. You can do it from here as well if you want. आप यहाँ से HTML select कर लो, वरना ऑलरेडी हमारे कोड के अंदर HTML का ही की एक्सटेंशन ऐड हुई है, तो वो HTML की फॉर्म में ही रन होगा. अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होता है styles.css. ये फाइल भी बना लेते हैं. styles.css and the third file we have is script.js. अभी तीन फाइल्स हमारे पास ऐड हो गई हैं, index.html, styles.css and script.js. Add the code to the files. HTML, index.html, open index and type the following code. अब हमारे पास एक कोड गिवन है जो कि हमने यहाँ पे टाइप करना है. अब जो ये पार्ट है, दिस इज द स्लो पार्ट. यहाँ पे लेकिन हमारे पास हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो IDEs होते हैं वो हमें कोड बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और वो हमें सजेशंस भी दे रहे होंगे कि नेक्स्ट वर्ड क्या टाइप करना है, और वो हमें एरर्स बता रहे होंगे. तो राइट नाउ यू कैन सी आई हैव ओनली एडेड the
एंगल ब्रैकेट, द ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, और उसने मुझे एक लिस्ट शो की है जिसमें फर्स्ट टर्म इज डॉक टाइप. आई कैन नेविगेट इट यूजिंग एरो कीज. डॉक टाइप इज व्हाट आई वांट, एंड बिकॉज हम HTML लिख रहे हैं तो HTML ने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया. नेक्स्ट वी हैव इज HTML. अगेन उसने मुझे ऑटोमेटिकली दे दिया. लैंग, अभी LA लिखा, उसने लैंग्वेज का भी दे दिया. EN basically means it's English, and we close this bracket. Now you see, last class में मैंने ये बात कही थी आपको कि automatically once you add a tag in Visual Studio Code, उसका ending tag आपके पास automatically add हो जाता है. So you can see कि मैंने HTML का tag add किया और closing HTML का tag automatically आ गया. Once I press enter तो वो एक लाइन के गैप से नीचे भी चला गया. Now the next tag we have is head. हेड के टैग के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं हो रही. एज सून एज क्लोज इट, हेड का क्लोजिंग टैग भी आ गया. देन वी हैव मेटा, चारसेट, UTF-8. लेट्स अंडरस्टैंड कि इस स्टेटमेंट में क्या हुआ है. चारसेट इज बेसिकली कैरेक्टर सेट. UTF-8 इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डाटा फॉर सिस्टम अंडरस्टैंडिंग. जिस तरह से हमने पढ़ा था, ASCII कोडिंग पढ़ी थी, यूनिकोड पढ़ा था, इस तरह से UTF-8 इज ऑल्सो एन एनकोडिंग टेक्निक ऑफ सॉर्ट्स. अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारे पास आ रही है. अगेन मेटा, नेम इज इक्वल टू viewport, content width is equal to device dash width, comma initial dash scale is equal to 1.0. Let's understand this statement now. Meta name basically, meta tag is usually used कि जो आप default values add कर रहे हो उसको define करने के लिए. Name means name के आगे लिखा है viewport. Name बता रहा है कि हम किस चीज के बारे में information add कर रहे हैं. And viewport is the part of the screen which is visible to you when you are programming. Part of the screen in the sense कि जो आप website आपने open की हुई है वो area show है, that's called viewport. Viewport का जो content है उसके बारे में हम क्या define कर रहे हैं. Width is equal to device width, वो कितना वाइड होना चाहिए, जो भी डिवाइस पे ओपन है उतना वाइड होना चाहिए. Initial scale is equal to 1, इसका मतलब है कि कोई zoom in नहीं होगा उसमें. Now we go to another familiar tag which is title. टाइटल के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो हमारे टैब का नाम होगा. In this case it's change message. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लिंक. लिंक का जो टैग है ये यूज होता है डिफरेंट चीजों के लिए. वन ऑफ विच इज एडिंग अ स्टाइल शीट, जो कि हम अभी करने लगे हैं. स्टाइल शीट href हमने पहले भी देखा था. दिस इज हाइपरलिंक रेफरेंसिंग. इन दिस केस हम किस चीज को रेफरेंस कर रहे हैं, style.css, एंड दैट वुड एंड और हेड टैग. हेड टैग के बाद अब हमारे पास आएगा बॉडी. विद इन बॉडी हमारा कोड 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है. One is div ID, message hello world. Another one we have a button, and third one we have a script. So first thing we will write is div. Div basically means a section of a code. ये last year भी हमने चीज पढ़ी थी. Div is used to section out your code. ID means कि जो ये certain div है इसको किस नाम से याद रखा जाए. जब भी कभी मैंने refer करना होगा तो मैं इसको मैसेज के नाम से इंडिकेट करूंगा. Then we have our text and the div ends. Next we have is button. Button has an ID which is change message button. तो बटन के इनिशियल टैग, ओपनिंग टैग के बाद और क्लोजिंग टैग दोनों के दरमियान में हम जो भी चीज लिखेंगे वो सारी की सारी चीजें हमारे पास उस बटन के नाम के तौर पे शो हो रही है. ये बटन क्या कर रहा है. इन दिस केस इट वुड बी चेंज मैसेज. अब थर्ड लाइन हमारे पास इन दिस केस आती है स्क्रिप्ट.
src is used for source script.js. इस फाइल से हमने स्क्रिप्ट उठाना है एंड क्लोज. ये हमारा हो गया HTML का कोड विच इज एग्जीक्यूटेबल. लेकिन इसके साथ दो तीन और चीज़ें भी हैं, वन ऑफ विच इज CSS. अब हम आते हैं CSS की तरफ. Now CSS part is going to be a little bit longer, but also it is not that time taking. Body, curly brackets, enter. Within the curly brackets हमारे पास बहुत सी terminologies आएंगी, one of which is font family. अभी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी वो नाम मुझे शो करता जा रहा है. So, Arial, Helvetica, Sans Serif. Okay. Display, flex, okay, flex direction is column, justify content, center, align items, again center, height, in this case we are using 100 VH. अभी VH basically means viewport height. viewport अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्क्रीन है उसको कहते हैं, उसका डिस्प्ले जितना आपको शो रहता है, दैट इज कॉल्ड अ viewport. तो 100 viewport height का मतलब है कि हाइट उतनी होगी जितनी डिस्प्ले की हाइट एक्चुअल मौजूद है. Then we have is background color. In this case we are using a number value hash f0 f0 f0, which is a shade of white basically. अब हम आते हैं जो हमने पहले लिखा था ना ID का मतलब होता है कि इस वैल्यू को मैं लेटर ऑन रिफर करना चाहता हूँ. अब मैं उस ID को रिफर किस सेंस में कर रहा हूँ? आई एम रिफरिंग इट यूजिंग मैसेज, हैश मैसेज. अब जो भी कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा वो कोड मैसेज के अंदर को मॉडिफाई करेगा. कलर हैश 333. Font size is 2 EM. EM is also a unit of size. Margin bottom means कि bottom से कितना gap होगा उसका. It would be 20 px is pixels, also a unit of size. Then we come to button. अब हम button के अंदर modifications करने लगे हैं. Padding means के sides पे कितना gap है, sides and top. तो 10 pixels and 20 pixels. Then we have is font size again. In this case we're using 1 EM. Then we have cursor. Cursor को अब हम change कर सकते हैं. We can set के cursor किस type का हो, जब इस button के ऊपर आए तो cursor का design क्या हो. तो in this case we are using a pointer. Pointer means it would show a pointer shape जब वो button के ऊपर आएगा. Background color we have a value of 4CAF50, which is a nice green shade. Then we have color. Just color means कि उसका shade क्या होगा when it is not clicked. We are using white. Border none and border radius 5 pixels. Border none basically means के no prominently visible border. Then we have is button colon hover. ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है बटन hover, ये बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि जब इस बटन के ऊपर कर्सर आएगा तो फिर क्या होगा. तो फिर जो सेटिंग होनी चाहिए, इन दिस केस वी आर यूजिंग अ बैकग्राउंड कलर चेंज. अब वो कलर चेंज क्या है? हैश 45A049. So there seems to be a very slight change in the color which does not really seem to be visible too much, लेकिन it is what it is.
एंड लास्ट पार्ट, जावास्क्रिप्ट। अब हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड। इन दिस केस इट वुड बी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक्चुअली नॉट राइट, यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर। ये जो टर्म है ऐड इवेंट लिसनर बेसिकली फंक्शन कॉल को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन कॉल किया गया है या नहीं किया गया। नेक्स्ट वी हैव इज DOM content load comma function. This is basically the syntax for this. Instead of closing right now, we are going to add another bracket here. Okay. Const is constant. Message div indicates कि हम मैसेज कहाँ पे कर रहे हैं, उससे ताल्लुक है इसका, मैसेज कहाँ पे लिखा है। document dot get element by id, document dot get element by id। अब वो id क्या है? id हमने ऑलरेडी ऐड की थी लास्ट सेक्शन में, which was message, जो हमने उसको नेम दिया था, that was the part। These brackets should be normal ones, not curly। अभी आप देख रहे हो कि ये चीज़ हमने डिस्कस की थी IDE के अंदर कि every IDE has runtime error detection। अभी वो ब्रैकेट्स गलत थे, उसने वहीं पे एरर शो करना शुरू कर दिया था। Now we have const button is equal to document dot again get element by id। अब बटन के लिए हमने क्या आईडी ऐड की थी? चेंज मैसेज बटन। नाउ अब जो बटन है, उस बटन की क्लिक को डिटेक्ट करने के लिए हम एक और चीज यूज कर रहे हैं, एक और इवेंट लिस्टनर यूज कर रहे हैं। इवेंट लिस्टनर मैंने आपको बताया कि फंक्शन कॉल को डिटेक्ट करते हैं। इन दिस केस जो फंक्शन कॉल है वो है बटन का क्लिक होना। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे क्लिक comma there is a function called and or curly brackets। okay, अब if message div dot text content, जो मैसेज div हमने ऑलरेडी बनाई थी उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट क्या है? ट्रिपल इक्वल साइन, विच मीन्स उसके अंदर एग्जैक्टली ये टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, हेलो वर्ल्ड। Then what do? We go into another section which would do message div dot text content। It would change that content to I love Pakistan। अब अगर जरूरी तो नहीं है कि वहां पे ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ हो, देयर इज अ चांस कि वहां पे कुछ और चीज लिखी हो, तो उस केस के लिए हम ऐड करेंगे एक एल्स। इस एल्स के अंदर हमने अगेन मैसेज div डॉट टेक्स्ट कंटेंट, हम उसके अंदर कंटेंट को चेंज कर रहे हैं। इन दिस केस जो भी लिखा हुआ है उसकी जगह हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड सिंपली। नाउ दिस एंड्स द पार्ट कि हमारा कंप्लीट कोड बिल्ड हो गया है। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। लेट्स सी कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है। योर डिफॉल्ट ब्राउजर शुड ओपन अ न्यू टैब डिस्प्लेइंग। अब यहाँ पे मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया, लेकिन नाउ वी विल गो इनटू द पार्ट जहाँ पे हमारा कोड हमने सेव किया था, index.html। वी विल राइट क्लिक, ओपन विद गूगल क्रोम। नाउ यू कैन सी हियर, you can see we have hello world like written in the middle and a button।
आप देख सकते हैं बटन के अंदर स्लाइट चेंज आ रहा है, वो लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन हो रहा है, और जो मेरा आइकन है वो पॉइंटर की फॉर्म में चेंज हो रहा है। When I click the button, there doesn't really seem to be much happening, which means that we are missing something. Let's go back. अब हमने फिगर आउट करना है, हमने डिबग करना है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। आइदर हमारा कोड लिंक नहीं हुआ हुआ, which is लिंक तो हुआ हुआ है script.js. Then we have other options. We can compare the code. Document.add event listener. Code seems to be somewhat correct, but we are missing something. Well, that's the part for the debugging. बाई चांस हमारे पास डिबगिंग की ऑप्शन की वाली बात ऑटोमेटिकली आ गई कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि कोड ऑटोमेटिकली खुले और वो सही रन भी हो रहा हो। तो अब यहाँ पे हम डिबगिंग करते होते हैं। तो अब डिबगिंग तो seems to be failing at the moment. Hmm. Okay, let's see. Okay, there is another thing मैंने आपको क्लास में भी बताई थी, extensions. Let's run some extensions. एक थी live server. Live server is a very good extension. Instantly आपके जो प्रोग्राम्स आप बिल्ड कर रहे होते हो वेबसाइट की स्पेशली, उनको ऑनलाइन डिस्प्ले करने के लिए एनेबल कर देती है। और दूसरी चीज़ हमारे पास थी प्रिटियर। प्रिटियर एक एक्सटेंशन है जो कि आपके कोड को रिफॉर्म करती है, कोड में बेसिकली कलर्स ऐड करती है, इन अदर वर्ड्स। लेट्स गो बैक टू आवर कोड और फिगर आउट के हमारे पास इशू कहाँ पे आ रहा है। ओके, दिस इज आवर गो लाइव। इंस्पेक्ट। ओके, इट अपीयर्स के हमारा जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, विच इज कि वो इवेंट लिस्टन डॉट क्लिक हमारा काम नहीं कर रहा। अब दिस कुड बी, देयर कुड बी एनी रीजन, वन ऑफ विच कुड बी चेंज मैसेज बटन का जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है ये चेंज डिफरेंट हो सकता है। लेट्स ट्राई दैट। डजंट सीम टू बी इट। मैसेज सीम्स टू बी राइट एज वेल। Well, that this part appears to be a little buggy right now, लेकिन ये है कि this is somewhat how JavaScript runs and the code is built. Main जो मकसद है हमारा वो फिलहाल हमारे पास ये है कि how Visual Studio Code is built and how Visual Studio Code executes, how it runs, how it adds files, how it suggests being an IDE, how does it suggest कि next process क्या run करना है, next task क्या achieve करना है, and so on and so forth. So I hope you followed and the steps and you achieved somewhere with them. Maybe you had better success in changing the text than me, but that's our program. Actually, we can do one more thing before we end this session. That is using Gemini. Being computer students, we should be using Gemini to figure out कि अगर हमारे पास कोई issue आ रहा है तो उसकी वजह क्या है। Now I have written all three codes with headings. मैंने Gemini को बताया कि these are the problems I'm facing. Next I'm going to tell के what exactly I'm trying to achieve. The button needs to change the message, but it is not happening. Why? Let's see what Gemini has to tell us. There is an issue. What is that issue? Here's the problematic part.
Okay, it is turning. Aha. You see now, this is the part. हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 equal signs रहे थे which were returning true or false, which means those were comparisons and not assignments. ये लास्ट ईयर पे हमने चीज देखी थी, डबल इक्वल एंड सिंगल इक्वल, एंड इन दिस केस ट्रिपल इक्वल एंड सिंगल इक्वल mean different things. Now let's try this. Go live, change message, and now it keeps changing. So I hope you guys followed the instructions and you reached till this part. Inshallah, we will be taking questions regarding this topic in the next class. Till then, take care. Have a nice day. Allah Hafiz.